काजिम सुल्तान एजुकेशनल सोसाइटी से जो हमारे कि मैं जनाब ज़फ़र जावेद साहब को मुखातिब होने की जहमत दूं। जनरल बॉडी मीटिंग का आगाज़ होगा। अब ज़्यादा देर इंतज़ार किए बगैर कारी जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन साहब को जहमत दूंगा कि वो माइक के पास तशरीफ़ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम, जहाज जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। This system and that system, हमारी रहमत इस्लामिक बैंक is the best way where we don't collect interest but we share profit. शुक्रिया। इनके अलावा नईमुल्लाह शरीफ साहब NRI एजाजुद्दीन बिल्डर प्रस्ताव भी पेश किया जा रहा है। आज हमेशा की तरह जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद हुई। इसमें आपको मालूमात होते रहे और हर तरह की तरह हर साल की तरह कि हमको किस तरह तरक्की करना है। ब्रांचेस खोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना ये बहुत ही जिम्मेदारी और का काम है। आप देखिए कितने कोऑपरेटिव बैंक खुले और तेजी से ऊपर नीचे होने की वजह से ख़त्म हो गए। हमको जो भी कदम उठाना है वो मुस्तहकम तरीक़े से करना है। आप की अमानत के जो आपके डिपॉजिट्स हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। यह बहुत अहम जिम्मेदारी है। काफ़ी आसान काम है कि आप ब्रांचेस सब तरफ खोलते जाएं, लेकिन हमेशा जहन में रखना है कि रेवेन्यू कैसे होगा। अब बाज़ प्लानिंग अगर कुछ ज़रा सी भी नामुनासिब हो तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे शेयर होल्डर्स और हमारे मेंबर्स की कमाई भी मेहनत से रकम वो भरोसे पे डिपॉजिट करते हैं। अगर वो ही आखिर में ये महसूस करे कि हमने एक गलती की कि गैर जिम्मेदाराना तरीक़े से लोगों के बहकावे में आकर अकाउंट्स खोले, अपने डिपॉजिट किए, इसकी जिम्मेदारी बैंक के जिम्मेदारों पर है, हम सब पर है। शुरू से तारीख़ अगर देखा जाए तो बैंकिंग एक नया आजकल के दौर में लफ्ज़ ना आया है, लेकिन शुरू से ही दुनिया के वजूद में जब इंसान
वजूद में आया हुए तो उनका तरीक़ा कुछ और था। वो अपनी पैदावार या अपनी जो भी चीज़ थी वो दूसरों के पास रख कर उसके मुआवजे में उनके प्रोडक्ट को हासिल करते थे और उस तरीक़े से एक तरह का बैंकिंग निज़ाम था। प्रॉफिट आपस में एक दूसरे पे भरोसा करके दिया जाता था। लिमिटेड आली जनाब मोहतरम खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान साहब, सैयद ज़हरुद्दीन साहब वाइस चेयरमैन, डॉक्टर मीर अकबर अली ख़ान साहब, मिस्टर मोहम्मद जाफ़र साहब, my other distinguished colleagues on the board, ladies and gentlemen, it's indeed my proud privilege to be standing here before you this afternoon in the general body meeting of Sikandrabad Urban Cooperative Bank Limited. As my predecessor speaker Mohammad Jafar Saab mentioned, it's a milestone in the history of in commercial organization to have survived for 18 long years. And Alhamdulillah, by the kind grace of Allah subhanahu wa ta'ala, not only has the bank survived during these turbulent fiscal periods, but it has managed to keep itself afloat by assuring fair and decent amount of returns on their shares. As Dr. Mir Akbar Ali Khan Sahab said, it's on the anvil that we would want to have many more branches of this bank, inshallah, in other parts of the city, and more so in the underprivileged areas, so that we could cater to tiny and small businesses, which we keep reading day in and day out, that these small traders have become scapegoats in the hands of money lenders, and it becomes the responsibility of every responsible citizen to ensure that we free them from this terrible menace of usury and money lending. And I'm sure Sikandrabad Bank in the years to come will inshallah play a very pivotal role in eradicating this evil and this menace from the community and the society. It's indeed heartening to note that Sikandrabad Bank has improved their investments. It has been upped by 6% in the last 6 months, which is a very creditable performance indeed by the bank. And even the loans that they have been giving and the interest that they have been paying on the savings bank account has been very attractive, I think much better than the other nationalized banks do. And I would urge everybody here to strengthen the hands of the bank to ensure that we in turn ensure that the community does well. Because unless and until we don't have the support of the community by way of savings and opening of their accounts with us, it would become rather difficult for us
सिकंदराबाद बैंक, जफर जावेद साहब, Director of the bank, and so as he is the Chairman of Islamic Development Bank and it is found that everything was growing day by day under the leadership of Mr. Khan Muhammad Latif Khan Sahab. As all you know, the bank was started in 1998 and continuously it is progressing for the past 17 years. The credit goes to the customers, those who are using the bank, and just now Dr. Mir Akbar Ali Khan Sahab was mentioning that we will be having our branches in Old City also. इसके सिवा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह ताला इस बैंक को हमेशा हमेशा सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मन नवालहू का बेइंतहा फ़ज़ल है, करम है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अभी हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने मुझे ये हुक्म फरमाया कि ये खुशगवार फरीज़ा यहाँ जितने हाज़रीन हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे यहाँ हुक्म दिया गया, इसलिए यहाँ मैं खड़ा हुआ। लेकिन मेरी हिम्मत कुछ ज़्यादा बनी इसलिए कि हमारे एक बहुत ही बुज़ुर्ग और हमारे वालिद साहब के दोस्त अहमद भाई साहब और हमारे बहुत पुराने कस्टमर जब से बैंक शुरू हुआ है वो हमारे साथ हैं। चेयरमैन साहब की तकरीर से उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे पैसे पूरे महफूज है इस बैंक में। अब तक तो 18 साल का तजुर्बा है, लेकिन आज चेयरमैन साहब बात करने से उनके दिल को इतना इत्मीनान हुआ कि कुछ एक बहुत भारी रकम मैं इस बैंक में कल सुबह चेक के ज़रिए जमा कराना चाहता हूं। मैं अहमद साहब से, हमदू भाई बोलते हैं इनको, और ये अलमारियों का काम करते हैं और फर्नीचर का काम करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे बड़े सप्लायर हैं अलमारियों के, उसके फर्नीचर के। मैं अहमद भाई से गुजारिश करता हूं कि ज़रा यहाँ करीब आ जाएं और आपके हुक्म के मुताबिक हम यहाँ ऐलान कर चुके हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला ये चेक भी हासिल करेंगे और इनकी ये ख्वाहिश थी कि एक बुके, क्योंकि ATM आ गया है, फर्स्ट से रिलीज़ हो जाएगा, पहला कार्ड भी चेयरमैन साहब को दिया गया है। इसलिए एहतियात के दायरे में मैं आपके सामने रकम नहीं ऐलान किया, ये बताना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं।